अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक हो आपको। बहुत बहुत उम्मीद है रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। और आज का जो वेबिनार है वो पैट्स जो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्टिंग सर्विस है और अपने बल पे का जॉइंट वेबिनार है। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था इसलिए कि खासतौर पे जब हम पेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और टीचर्स होते हैं अपने बल पे में, यंग है, यूथ है, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैनेजिंग एग्जाम एंग्जाइटी एंड एनहांसिंग परफॉर्मेंस, ये वो चीज है जो एक फैक्ट है, अभी से नहीं हमेशा से। मतलब मैं मतलब मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, कॉलेज छोड़े हुए 30 साल हो गए हैं, ये होने वाले हैं। बट उस वक्त भी एंग्जाइटी होती थी। और ये बड़ा, और खाली इस एग्जाम एंग्जाइटी नहीं होती, इवन जब आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हो, उसकी एंग्जाइटी भी होती है। तो बहुत दफा कहा जाता है कि अगर उस एंग्जाइटी पे आप काबू पा लें तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमने रखा है ये मैनेजिंग एग्जाम एंग्जाइटी एंड एनहांसिंग परफॉर्मेंस। और आज के जो लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ कराता जाऊं। सुफिया सुहेल साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड ब्रांड एम्बेसडर, टेक टेटेंस पाकिस्तान। Sophia Suhail is a professional psychologist specializing in mental health counseling and personal development. She has worked with the Qasim Ali Shah Foundation and provides psychological consultations through different platforms. With a strong presence on social media, she actively shares insights on mental well-being, emotional resilience, and self-growth. Through her expertise, she helps individuals manage stress, anxiety, and life challenges, empowering them to lead healthier and more fulfilling lives. सोफिया साहबा, आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपने ये आज हमारा वेबिनार की दावत कबूल की। और आप देखिएगा कि बड़ी जो है ना वो एंगेजिंग किस्म की ऑडियंस आपको मिलेगी। और आज की जो आपका बहुत सेकंड शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया आप लोगों ने, और मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है ये। प्लेयर इज ऑल आर्स, जी प्लेयर इज ऑल आर्स। और सेकंड हमारी आज की स्पीकर हैं अलीना अरशद। अलीना अरशद एजुकेशनल एंड कैरियर काउंसलर। Alina is a psychologist and clinical practice. Her research is on issues related to youth. She has successfully guided over 100 students in navigating and planning their careers, helping them to make informed decisions that aligns with their personal goals and aspirations. She is a distinguished senior lecturer at Higher Education Commissioner recognized university. Alina is currently pursuing a PhD with her research focusing on the career discrepancies faced by Rosent. Her research covers the disengagement from studies because of incorrect program choices and aims to pave the way for more informed and supportive career planning processes. She is the lead trainer at tactics training for programs on career navigation and planning. Alina is also playing the lead role in the Be Positive project, an initiative aimed at behavior modification during career transitions. और आज की अलीना, आप बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वेलकम टू पैट्स एंड एबीपी। थैंक यू सो मच। आज की तीसरी स्पीकर हैं, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया हुसैन, जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनको लाइव ले आएंगे। डॉक्टर शाजिया प्रोफेसर हैं, एचओडी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। Dr. Sadia is a clinical psychologist with a PhD in clinical psychology in 2002. Along with the experience of dealing patients with mental illness, she is also teaching at postgraduate level courses of psychodiagnosis, physiotherapy, etc. She has done research work at the national and international level on the topics related to mental illness and psychopathologies that has published in renowned journals of psychology. Since 2010, she has been working as an administrator, HOD of university level, and chairperson of humanities and social sciences, dealing with academic and administrative work. प्रक्षात के जैसे ज्वाइन करेंगी हम उनको लाइव ले लेंगे। और आज जनाब टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजिंग एंग्जाइटी, एग्जाम एंग्जाइटी एंड एनहांसिंग परफॉर्मेंस। ये होता क्या है? एग्जाम एंग्जाइटी होती क्या है? देखिए, एग्जाम एंग्जाइटी इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी दैट अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग एग्जाम्स ड्यू टू स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। याद रखिएगा, ये एग्जाइटी रिलेटेड है एग्जाम पे। कुछ लोगों को पहले से स्टार्ट हो जाती है, जैसे डेट आती है एग्जाम की, वो टेंशन में आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहले कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जब पर्चा सामने आता है
तो परेशान हो जाते हैं। और मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। हमें एक बात हमें कही जाती थी कि जी जो 3 घंटे का गेम है ना, गेम वही है, नॉलेज हर एक के पास होती है। इसलिए कि सारी बात, हम प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में आपके साथ जॉब एक्सपीरियंस भी होता है, स्टडी भी होती है, तो नॉलेज सबके पास होती है, नॉलेज का खजाना होता है, बट वो 3 घंटे का जो गेम होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कितना सक्सेसफुली आपने प्ले करना है। तो आज का टॉपिक उसी हवाले से एग्जाम एंग्जाइटी। सोफिया सोहेल साहब, आपकी तरफ आते हैं, इस टॉपिक पे हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करें कि होता क्या है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेस एंजाइटी जो एग्जाम के दौरान होती है, वो बेसिकली दो तीन कॉजेज होते हैं उसकी। बेसिकली होता क्या है कि आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आपको बेचैनी होती है, आपको पेपर्स की एंजाइटी होती है कि क्या बनेगा, इन फियर्स आते हैं बेसिकली कि क्या होगा। अच्छा, दो चीज लोगों को फियर्स आते हैं ये ज्यादातर। एक वो लोग जो उनको जिनकी तो तैयारी नहीं होती, उनको खौफ होता है कि जी हमारा कुछ हम पास नहीं कर पाएंगे। एक जो स्ट्रेस एंजाइटी मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत सारे बच्चे जो बहुत हाई अचीवर्स बच्चे हैं, उनको बहुत एंजाइटी होती है। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस से पूछती हूँ तैयारी नहीं, वो कहते हैं जी तैयारी बहुत अच्छी है हमारी। अच्छा, एंग्जायटी क्या? परफेक्शन, परफेक्शन लेने के लिए कि हर चीज़ हमारी हमारी इतनी तैयारी, हमें हमें मार्क्स अप ग्रेड चाहिए, हमें टोटल नंबर चाहिए, हमें टॉपर होना है, हमें परफेक्शन चाहिए, हमारी हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। ये एक ऐसा फ़ियर है जो बच्चों को स्ट्रेस एंग्जायटी में लेकर आता है। और मैंने प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि उन बच्चों को ज़्यादा होती है एंग्जायटी जो कि बहुत हाई अचीवर्स होते हैं। ठीक है? पेपर से पहले बुखार हो जाना, घबराहट हो जानी, पेपर जैसे ही पेपर सामने आया, हाथ-पाँव फूल जाने, पसीने आने शुरू हो जाने, ये सारी परेशानियाँ जो है वो स्ट्रेस एंग्ज़ायटी होती है। ये जो पेपर की एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी होती है वो बहुत कॉमन है। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस में अगर देखें तो फीमेल और मेल दोनों ही शामिल हैं। और ये एंग्ज़ायटी जो है बच्चे को ये ख़्याल आता है कि जी मैं लो परफ़ॉर्मर ना रह जाऊँ। अच्छा, इसकी जो एक बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है, जो पेरेंट का प्रेशर होता है, वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ये बच्चों की एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी के लिए। पेरेंट का जो प्रेशर है कि जी आपने हाई अचीवर रहना है, कॉम्पिटिशन का बहुत दौर है, कंपैरिज़न्स हैं, ये सारे रीज़न्स बनती हैं बच्चे की स्ट्रेस एंग्ज़ायटी के लिए। तो ये सारी बड़ी कॉमन चीज़ है। पैनिक अटैक हो जाना, घबराहट हो जानी, बुखार हो जाना, बहुत सारे बच्चों को बुखार हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। ये सारा का सारा जो है स्ट्रेस एग्जाम एंग्जायटी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह आपने डिफाइन किया। और एग्जैक्टली जो खासतौर पे हाई अचीवर्स होते हैं उनको ज्यादा होता है। मुझे हम 4 बहन भाई हैं, तो एक छोटी बहन तो काफी छोटी है, हम 3 साथ साथ के थे। तो हमारी जो सेकंड नंबर की बहन थी मुझसे बड़ी, वो हमेशा टॉप करती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वो उसको नींद नहीं आती थी एग्जाम में। मैं और मुझसे बड़े, जो सबसे बड़ी बहन थी, हम चिल होते थे, हम टॉप 10 में थे, हम टॉप क्लास के टॉप 10 में आते थे। हम लोग आएंगे तो आठ पर नहीं आएंगे, 9 आ जाएंगे। तो यू आर 100% राइट। लीना, आपके अल्फाज में, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कि आप कैसे इसको डिफाइन करेंगी कि एग्जाम एंग्जाइटी और उसका उसे खैर आगे चलते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आप प्लीज इसको कीजिएगा। सर बेसिकली एग्जाम एंजाइटी जिस तरह बड़ा क्लियर है। एंजाइटी बेसिकली हम कहते हैं फ्यूचर की किसी भी बात को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि वो चीजें आपको वो काम भी ना करने। एंजाइटी मैं डिफाइन करूंगी 3 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव एंजाइटी, एक होती है नेगेटिव एंजाइटी, और तीसरी होती है एब्सेंस ऑफ एंजाइटी। पॉजिटिव एंजाइटी इज अ गुड टाइप ऑफ एंजाइटी जिसके अंदर आप इतना फील करते हैं, इतना परेशानी लेते हैं कि आप उस चीज की जो प्रेपरेशन है उसको ज्यादा अच्छे से कर सके। और साइंस बताती है, हमारी रिसर्चेस बताती हैं कि जिनको पॉजिटिव एंजाइटी होती है वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। जिनको नेगेटिव एंजाइटी होती है, अब नेगेटिव एंजाइटी में उनको मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स आते हैं। कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह फिजिकल सिम्टम्स में सोफिया ने बड़ी क्लियरली बात, मैं कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्टम थोड़ा सा बता दूं। जिस तरह वो नेगेटिव सेल्फ टॉक आपने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा स्टडी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, टेस्टिंग सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, असेसमेंट को जो है ना वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज भी लीड करती है उनकी पुअर परफॉर्मेंस की। और दूसरी तरफ जो एब्सेंस ऑफ एंजाइटी है, जो चिल माहौल होते हैं, वो कहते हैं अच्छा पढ़ लेंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। तो ये बेसिकली एंजाइटी के जो है वो 3 टाइप हैं। अब जब ये तीनों टाइप आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको पता है 2-3 माह में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, और ये स्टार्ट होती है एग्जैक्टली जब आपके पेपर्स के अंदर 2 माह रह जाते हैं।
इसके क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो 2 मंथ्स के जब आपके एग्जाम में रह गए हैं वहां से ये होना स्टार्ट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा अभी टाइम है, 2 महीने है, हम कर लेंगे। कुछ होते हैं जो कहते हैं अच्छा अभी 1.5 माह है, अभी भी कर लेंगे। लेकिन फिर आखिरी दिन ऐसा होता है कि एक दिन पहले तक हम कुछ भी नहीं किया होता और फिर हम बहुत ज्यादा पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज एग्जाम एंजाइटी। एग्जाम के 2 माह पहले से जो आपके अंदर पैनिक शुरू हो जाता है अपने एग्जाम के लिए, उसे हम एग्जाम। थैंक यू सो मच। मैं इस टॉपिक को सर्च कर रहा था तो बड़ी चीजें हैं, जैसे सबसे जो मेन आता है वो है जी प्रेशर टू परफॉर्म वेल। कि आपको ये प्रेशर होता है कि आप परफॉर्म वेल नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ प्रिपरेशन, परफेक्शनिज्म, कंपैरिजन विद पीयर्स, प्रीवियस बैड एक्सपीरियंसेस। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। सुफिया साहब आपकी इस तरफ आते हैं जी। देखिए अब आपने बिल्कुल डिफाइन किया, हमारे ऑडियंस को समझ आ गई होगी कि टॉपिक एग्जैक्टली क्या है। और डेफिनेटली ये कैसे आपके चीजों को असर करता है। मीन्स कि नॉर्मली नॉलेज इंसान के पास होती है, बहुत तो जारी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं तो। और डेफिनेटली इसका जो जितनी एंजाइटी होगी वो आपकी परफॉर्मेंस पे असर करेगी। Exactly. तो कैसे, अगर हम इसको वो कहेंगे कि एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाए या इसको परफॉर्मेंस, मतलब सबसे पहले एक बात ये कि हम इसको क्या प्रिपरेशन करें, जिस तरीके से हम जो है वो कोई क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम इस एंजाइटी को कंट्रोल कर सकें या कम कर सकें। अच्छा देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम बच्चों पे फोकस करते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें पेरेंट्स को भी ना पूरी पेरेंटिंग की जरूरत है। ठीक है, पेरेंट्स जो है ना, एक तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है कि इट्स ओके अगर बच्चे की परफॉर्मेंस या चीजें अगर एक्सीलेंस पे नहीं जाते, इट्स ओके। हम पेरेंट्स ने क्या किया है, पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा ये किया कि बच्चों को एक तो कंपैरिजन करते हैं। नंबर 2 पे कंपटीशन में रेस में लगा दिया उनको। आपने नंबर्स की रेस में लगा दिया, आपने उनको कंपटीशन की रेस में लगा दिया है। आपने उनको बताया है कि जी सब कुछ पढ़ाई है, उनकी जो अपनी जो क्वालिटीज है उन पे फोकस करने की बजाय हमने सिर्फ एक जो पढ़ाई का जो क्राइटेरिया उसको बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हमने कर दिया है। सबसे पहले पेरेंट्स को एक पेरेंट्स जब कॉन्फिडेंस देते हैं, बेटा आई एम विद यू वट एवर यू आर। ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का, ये बच्चे को कॉन्फिडेंस को बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है, ओके फाइन, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा अगर मैं इतना कामयाबी एक्सीलेंस नहीं भी ले सकूं, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, बच्चे को एक वैलिडेशन देना सबसे पहले पेरेंट्स को जरूरी है बहुत ज्यादा, कि पेरेंट्स को बताया जाए कि इट्स ओके। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब पेरेंट्स ये कर ले तो बच्चे को साथ साथ बच्चे को शुरू में चेक एंड बैलेंस रखे। बच्चा बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको गाइडलाइन प्रॉपर प्रोवाइड करें, उसको एक माहौल दें। अब ये पॉसिबल नहीं है कि जी घर का माहौल अगर स्ट्रेसफुल है तो बच्चा एक्सीलेंस से परफॉर्मेंस दे। ठीक है, एक घर का माहौल सेटल्ड ऐसा कि जो बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल है जिसमें वो पढ़ सके। नंबर 3 पे फिर मैं बच्चों से बात करती हूँ कि बेटा आपको पता है एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन कम से कम 6 महीने पहले शुरू कर दें और अपने डेली चीजें करते रहें। जब आपको आपको कॉन्फिडेंट होंगे आप इस चीज के लिए कि आप ओके कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप अच्छा परफॉर्म भी कर सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ पॉजिटिव टॉक। अगर हम अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करेंगे, आई आई हैव नॉलेज, आई कैन डू बेटर, आई एम गुड इन दिस सब्जेक्ट, आई विल डू इट इन बेटर वे। ठीक है, बेस्ट वे। जब ये जो बात होती है उससे बच्चे के अंदर जो हम सेल्फ अफर्मेशन पॉजिटिव टॉक करते हैं वो बेसिकली हमारे अंदर एक माइंड मैपिंग कर रही होती है, जो हमें बताती है हमें अपने बारे में, हमारी सेल्फ स्टीम को हाई करती है। जब सेल्फ स्टीम हाई होती है डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं आप परफॉर्म अच्छा करते हैं। तो ये चीजें बताने की जरूरत है। बच्चों को आप कहें कि जी आप अपने बारे में तो अच्छा है, अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करें। ये अगर हम वो ये कहेंगे जी आप हाई अचीवर्स को क्यों, हम क्यों क्या फोकस करते हैं कि हाई अचीवर्स को नहीं होनी चाहिए। हाई अचीवर्स ने जो क्राइटेरिया सेट किया ना परफेक्शन का, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलीना मुझसे सहमत करेंगी इस बात पे, हाँ बोलेंगी कि इस बात पे एग्री करेंगी कि जो परफेक्शन है, हम जब हमारे पास पेशेंट आता है या क्लाइंट आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं दो चीजें, नींद कैसी है, परफेक्शन तो नहीं ढूंढते। जब बच्चे को ये हो कि जी मुझे परफेक्शन हासिल करनी है, तो परफेक्शन कहीं नहीं है। बच्चों को ये बताना है आपने एक्सीलेंस पे जाना है, परफेक्शन मत ढूंढे। परफेक्शन कोई भी हालात हो सकते हैं, सडनली कोई एग्जाम में कुछ कोई गलती, सडनली एनवायरनमेंट में ऐसी चेंज आ सकती है जो कि स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। तो परफेक्शन नहीं ढूंढे आप, परफेक्शन कहीं नहीं है। तो जब बच्चों को ये कहा जाएगा ना कि ओके फाइन,
पेरेंट्स की तरफ से वैलिडेशन मिलेगी जब बच्चे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे। और बच्चे जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आपको जब एंग्जाइटी होती है, प्लीज डू इट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प यू अ लॉट टू काम डाउन योर सेल्फ, इनर कामनेस पैदा करती है। आप अगर आप सिर्फ एक प्रैक्टिस करें कि आप बैठे, जिस तरह डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठते हैं, घुटने पे हाथ रखें, आप नाक के जरिए इनहेल करें, तकरीबन 7 सेकंड तक इनहेल करें, 5 सेकंड तक होल्ड करें एंड 4 सेकंड तक अपने मुंह के जरिए एक्सेल करें। ये 8 से 10 टाइम ये करिए, आपके अंदर एंग्जाइटी जो स्ट्रेस है वो एकदम से रिलीफ हो जाता है और आपका फोकस भी डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को समझनी है और सोचनी है। एग्जाम अच्छी करें, तैयारी अच्छी करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें, सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और परफेक्शन ना ढूंढें। थैंक यू सो मच सोफिया। अलीना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी कि फेलियर से ज्यादा जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, वो बड़ी खराबी पैदा करता है। और जो कंपैरिजन है, मतलब मैं एक चीज को बड़ा मैंने फेस किया अपने चाइल्डहुड में, और मैंने एक चीज अपने घर में रूल बनाया था कि जी कंपैरिजन नहीं होना। मुझे कोई आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि जी वो फलाने भाई का बच्चा है, कजन का बच्चा है, या पड़ोसी के बच्चे ने क्या करना है, ठीक है, बी एट योर बेस्ट, जो करना है करो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, जो एक हवा बना देते हैं, खौफ पैदा कर देते हैं, जैसे अभी सोफिया साहब ने बात की कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, खासतौर पर इसलिए कि हमारी ऑडियंस में बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। इसको हम कैसे टैकल करें कि खौफ एक इतना ज्यादा ऑरा पैदा कर देना कि जिसमें डर हो जाए, और वो कंपैरिजंस की करने के लिए वो कितना एंग्जाइटी और इस चीज के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा सर, बेसिकली फियर ऑफ फेलियर की जो अगर आप बात कर रहे हैं, ये सबके अंदर होता है। आप चाहे कह लीजिए कि बच्चा है चाहे बड़ा है, अगर हम एफर्ट कर रहे हैं और हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हम बार बार इस चीज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं कि हम नाकाम हो रहे हैं। और एक ऐसा वक्त आता है कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब, हम कुछ भी कर लें हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये एक नेगेटिव थॉट है, और नेगेटिव थॉट एक मजीद नेगेटिव थॉट को डेवलप करती है। और जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स डेवलप होती जाती हैं, वो हमारे एंजाइटी को मजीद जो है वो बढ़ाती रहती है। आपके अंदर इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आना शुरू कर देती है। जिस तरह मैं कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करूं, जो आपने अभी बात की फियर ऑफ फेलियर की वजह से हमारे अंदर होती हैं। जिस तरह आप कह लीजिए, बाजुकात हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, और खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम आता है वो शेम का सिम्टम आता है। जैसे हमें लगता है कि हम अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? एक ये चीज, इसके साथ दो चीजों में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह आपने फेयर ऑफ फेलियर की बात, दूसरी तरफ लोगों को फियर ऑफ इम्परफेक्शन बहुत ज्यादा होता है। परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं, वो फेयर ऑफ फेलियर को ही वो कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमें फेयर ऑफ फेलियर। हालांकि फेयर ऑफ इम्परफेक्शन एंड फेयर ऑफ फेलियर दो अलग चीजें हैं, लेकिन सिम्टम्स आप कह सकते हैं कि दोनों के सेम हो सकते हैं। अब आपने दूसरी बात की कि मैं बात करूं कि इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती है, और फिर इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। देखिए, फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है। नंबर दो, आपका ये लर्न्ड बिहेवियर हो सकता है कि आपने जिस इन्वायरमेंट में ग्रो किया है, आपने उस इन्वायरमेंट से ये चीज सीखी है कि मुझे फियर होगा इस चीज का कि मैं फेल हो जाऊं। नंबर तीन, आपके कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको फेलियर का जो फियर है वो प्रोड्यूस करते हैं, और आपको लगता है कि आप जो है वो सही से इस चीजों को लेकर नहीं चल सकते और आप परेशान हो जाते हैं। अब आती है तीसरी बात जो आपने पूछी कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखिए, नंबर वन, हम नफ्सियात की जुबान में इस थेरेपी को कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। कि जब तक आप उस चीज को कर नहीं गुजरते, आप उस चीज का फियर नहीं ले। एक्सपोजर कहते हैं डायरेक्ट किसी चीज के कांटेक्ट में जाना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप अगर इस चीज को फोकस रखें, आप इस चीज को जहन में डाल लें कि एग्जाम तो मैंने देना ही देना है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, और आप अपने फेलियर को अगर एज अ लर्निंग कंसीडर करें, तो मेरा ख्याल है आपको फियर ऑफ फेलियर जो है वो बाकियों की निस्बत कम फेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन भी है सोफिया साहब आपसे, मैं पूछता हूँ। सबा सलीम साहब का क्वेश्चन है कि व्हाई फियर ऑफ फेलियर एंड स्ट्रेस लीड्स टू सुसाइड। इसलिए कि ये कुछ अरसे से हमने बहुत ज्यादा देखा गया है, सुसाइड्स होती थी। यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज था जिनमें यू हैव टू बी लाइक, आपको अगर कंटिन्यूसली 3 दफा सबसे क्लास में लोएस्ट आए तो आपको निकाल दिया जाता था। उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक के बच्चों ने जो है वो एग्जाम एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से, या जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उसकी वजह से सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों उस तरफ लीड करता है? इतना क्या चीज बढ़ जाती है कि वो, या मतलब हम उसको निकाल नहीं पा रहे होते? इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। क्वेश्चन है सबा सलीम साहब कि व्हाई फियर ऑफ फेलियर स्ट्रेस लीड्स टू सुसाइड। अच्छा, एक चीज मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखी है कि एम कैट और ई कैट के बाद बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उसके पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। दो तीन वजूहात होती हैं। देखिए, एक तो जो फियर और फेलियर फेलियर जो होता है वो आपके अंदर एक स्ट्रेस लीड कर जाता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एंग्जाइटी को, जब हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी को उस टाइम मैनेज नहीं करते तो होता क्या है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको जिंदगी में हर दिलचस्पी जो होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आपको बस लगता है कि जो फेलियर हो गया, उस फेलियर को हम मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं और हम उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं जिंदगी में हम नाकाम हो गए। हमारे जो डिप्रेशन में जाते हैं, और जब डिप्रेशन में हम चले जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो तब उनको लगता है कि ये यही दुनिया की जो हमारी जो क्या हरफे आखिर था और ये चीजें हम हासिल नहीं कर सके, इसलिए अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो क्या करते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट जब बच्चे कर रहे होते हैं, उसमें दो तीन चीजें होती हैं जो मैं अक्सर, मेरे बारे में अक्सर ये कहा यह जाता है कि आप पेरेंट्स को ज्यादा कहती हैं कि पेरेंट्स का ने लीड रो नहीं किया। बिकॉज मुझे लगता है कि जब बच्चे आते हैं हमारे पास, जब हम उनसे बच्चों से बात करते हैं तो बहुत सारी वो चीजें होती हैं जो बच्चों, पेरेंट्स के अपने ड्रीम्स जो पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, बच्चे पर अपने ड्रीम्स कर दिए गए, बच्चे का एक पैशन नहीं था लेकिन आपने बच्चे को फोर्स कर दिया आपने वो करने, क्योंकि हम डॉक्टर इंजीनियर या कोई नहीं ले पाए। तो होता क्या है कि बच्चे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरना, ये रीजन। फिर बच्चे की जो एक बच्चे में अंदर होते, मैं नाकाम हो गया, जो सेल्फ नेगेटिव टॉक करते, मैं नाकाम हो गया, मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। फिर वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंड देन इट टेक्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन हमेशा लीड करता है सुसाइड अटेम्प्ट्स पे। तो जब से सारी चीजें हो रही होती हैं उस टाइम पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा बिल्कुल तन्हाई पसंद हो गया है, वो अंधेरे में रहना शुरू हो गया है, उसने सोशल लाइफ खत्म कर दी है, वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करे कि मैं नाकाम हो गया, मैं नाकाम हो गया, मैं नाकाम हो गया, तो उसको देखें कि इसको, ये चीज, ये एक आपके लिए चाइल्ड, मतलब कि कॉशंस होते हैं या कोई अलार्म बज रहा होता है। पेरेंट्स को उस टाइम देखना है कि बच्चा इस चीज तरफ जा रहा है और हमें इस पर काम करने की जरूरत है। एक चीज मैं हमेशा बताऊं, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। बच्चे को बताते हैं ओके, वी आर एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। अगर नाकाम हो गए तो इट्स ओके, तुम्हारी अल्लाह ताला ने ये फील्ड नहीं रखी थी, अल्लाह ने आपका रिस्क कहीं और रखा हुआ था। जब बच्चे मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि देखिए बेटा, आपको क्यों लगता है कि आप जब डॉक्टर ही बन सकते थे तो आप कामयाब थे जिंदगी में? आपने देखा है बहुत सारे डॉक्टर सीएसएस कर लेते हैं, सीएसएस में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनका रिस्क डॉक्टरी पेशे में नहीं रखा हुआ था, उनका रिस्क अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन में रखा हुआ था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरत है। इसलिए सुसाइड करते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाते हैं तो डिप्रेशन में हमेशा जो एडवर्स हो, जैसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, कि बच्चे सुसाइड की अटेम्प्ट करते हैं। नाकामी का थैंक जो यू। है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक बात की कि जो माँ बाप अपनी अधूरी ख्वाहिशात अपने बच्चों के थ्रू पूरी करना चाहते हैं ना, वो बड़ी खराबी पैदा करता है। इसलिए कि जो जो उन्होंने नहीं किया होता वो चाहते हैं उनके बच्चों में वो आ जाए, और वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वह उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की जीन्स लेकर आए। ठीक सीरियसली, है। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। और मुझे मुझे याद है, मेरे एक दोस्त और उसके वालिद का बड़ा झगड़ा हो गया था और हमने बड़ी मुश्किल से मीडिएट करवाया। इससे कि जो एक्सपेक्टेशन वालिद को बेटे से थी, तो एक दिन उसने कह दिया कि बाबा, आप में तो कुछ भी नहीं है ना, आप भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट मी कि मैं जो हूं ना वो हर चीज में टॉप करूं और सारे पढ़ूं भी स्कॉलरशिप पे। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना कि ख्वाहिशात होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपकी, और डेफिनेटली आप उसको देखते हैं, जो आप नहीं कर सके आप चाहते हैं आपके बच्चे कर सके। बट उसमें लॉजिक लानी चाहिए, उसमें ये देख लेना चाहिए कि क्या वो मुमकिन भी है कि वो नहीं है। और क्या इतना स्ट्रेस करें आपके लिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, उसकी अच्छी लाइफ इंपॉर्टेंट है, या वो ख्वाहिश, वो अधूरी ख्वाहिश इंपॉर्टेंट है जो आपने ने पूरी की तो नहीं की? भाई आप भी तो जिंदा है ना, आप भी फैमिली रन कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो बच्चे भी कर लेंगे। और ये बड़ा, और इस चीज को जो सबसे मेरे ख्याल में
बड़ा बड़ा पेरेंट्स को हमें इस चीज को बताना चाहिए कि एग्जाम में अच्छे नंबर्स या टॉप करना प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं जनरल वो तो नहीं कहूंगा, बट एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जिसमें कि जो टॉपर्स होते हैं वो लाजमी नहीं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए कि उन्होंने अपना इतना ज्यादा फोकस ध्यान जो है वो खाली एजुकेशन में होता है कि जो जिंदगी के ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको उनको पता ही नहीं होता, वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाते। उसमें एकेडमिक एग्जाम में, रिटन एग्जाम पे दे आर टॉप, इंटरव्यू में उनके उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं। जब वो जाते हैं वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए कि जब आप नौकरी करते हैं तो उसमें तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया हमारे साथ लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपको ऐड होने में थोड़ा टाइम लगा, इस वक्त फुल हमारा वो चल रहा था, तो आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब, नुमान राइट से अलाउ करो उसके वॉइस के। यस सर, को होस्ट हैं डॉक्टर शाजिया। ऐसे को होस्ट है। डॉक्टर शाजिया, अगर आप सुन रही हैं तो कुछ, माइक आपका मेरे ख्याल है काम नहीं कर रहा। सर माइक अलाउ नहीं किया हुआ इन्होंने, माइक पे क्लिक करवाना पड़ेगा। आपको माइक ओपन करना पड़ेगा। अब नुमान, आप इनकी सेटिंग ठीक करवाओ, मैं इस पे जाता हूँ, आगे इस पे जाता हूँ। अच्छा जी। अलीना, आपकी तरफ आता हूँ। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बड़ी मैंने मुझे एक्सपेक्ट करा, तो खासतौर पे जब जितनी ऑडियंस हमारी वेट कर रही थी कि आज क्वेश्चंस बहुत होंगे। इफ फेलियर कम्स अगेन एंड अगेन बट यू हैव नो होप ऑफ स्टिल वर्किंग ऑन इट, देन व्हाट आर स्ट्रेटजीज टू स्टिक यू वर्किंग ऑन इट? मतलब आप फेलियर आ रहा है, आपने ट्राई मल्टीपल ट्राइज कर ली और हर दफा फेल हो गए, तो क्या करें? क्या आपने स्टिक भी रहना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? आप इसका जवाब देते हैं, फिर मैं थोड़ा सा उनको जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ जो कॉर्पोरेट जॉब में हम करते हैं उसकी बात बताऊंगा। तो प्लीज इसको, अगर ये है MJ कीविस नाम है, जी जी मुझे नहीं पता। तो ये इफ फेलियर कम्स अगेन एंड अगेन जी बट यू जी। हैव नो, तो क्या करें? अच्छा सर, बेसिकली फेलियर को मैंने पहले भी जिस तरह डिस्कस किया कि अगर हम फेलियर को एज अ लर्निंग लें तो शायद हमें उसमें से कोई ऐसा पॉइंट मिले जो हम गैप जो है वो थोड़ा रोक रहे हैं, जो हम गैप जो है वो थोड़ा सा लीव कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम आप ले लीजिए कि एक बंदा है, वो कोई रिसर्च वर्क कर रहा है या वो अपनी जिंदगी में कहीं जाने के लिए कोई एफर्ट पुट कर रहा है लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा। अब मिसाल के तौर पर उसके अंदर क्या क्या चीजें कम हो सकती हैं, या उसकी गाड़ी में पेट्रोल पूरा नहीं हो सकता, या गाड़ी में आप कह लीजिए उसने ऑयल पूरा नहीं डलवाया हुआ, वो चल चल के उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि उसकी ट्यूनिंग होने वाली है, उसको थोड़ी ब्रेक की जरूरत है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो ऑब्वियसली उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा ब्रेक ले, थोड़ा सा पॉज ले। पॉज लेके उसने पहले जितनी वर्किंग की है वो उसके ऊपर देखे कि उसने जो काम किया है वहां पर कोई ऐसा काम तो नहीं है जो अधूरा रह गया हो, जिस पर उसने काम ना किया हो, जिसको उसने कंसीडर ही ना किया हो, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो। जब उसने कंसीडर नहीं की, हो सकता है वही जो है वो उसका गैप हो और उस पर काम करने की जरूरत हो। तो ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बार बार काम करके आपको बार बार नाकामी मिल रही है, नंबर वन, एक तो अपने काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लीजिए, उसकी मुख्तलिफ और एस्पेक्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर कीजिए, मुख्तलिफ चीजों को देखिए, हो सकता है कि आपको उसमें कोई ऐसी चीज मिल जाए। नंबर दो, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मिलिए, उनके साथ मिलके उनके साथ चीजों को डिस्कस कीजिए और उनको बताइए कि ये आइडिया है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ लेकिन मैं उस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहा, आपकी क्या राय है? देखिए, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है ना, जो इतने अरसे से उस फील्ड में काम कर रहा है, हो सकता है उसको वो चीज आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये दो काम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए। तीसरी चीज जो आपने बात की कि हम फिर भी नाकाम होते जा रहे हैं, हम कंसिस्टेंट किस तरह से रह सकते हैं? देखें, अगर तो वो काम आपका पैशन है ना, फिर आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे उसको कंप्लीट करने में, आप उसको करके ही छोड़ते हैं। और अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो फिर जिस तरह अभी सोफिया ने बात की, फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि वो आपके लिए है ही नहीं, और अल्लाह ताला ने आप रास्ते लिखे हुए हैं वो सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए था, आपको कंसिस्टेंसी सिखाने के लिए था कि आपने कंसिस्टेंट किस तरह रहना है। फिर आपको अपने लिए कुछ और रास्ते तलाश करने की जरूरत है। हम बाजूकात जिद भी कर लेते हैं एक काम के साथ, तो हमें किसी काम के साथ जिद नहीं करनी। सबसे पहला असूल तो अपना ये बनाना है कि अल्लाह ताला ने जब आपके लिए वो काम रखा है फिर वो हर हाल में हो जाना है। अगर आपके लिए ही रखा है फिर वो होगा, हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले ले लेकिन हो जाएगा। और अगर नहीं रखा, फिर आप लाख कोशिशें कर लें, फिर आपके लिए उसमें लर्निंग रहेगी, अचीवमेंट नहीं रहेगी।
थैंक यू सो मच। सोफिया, आपकी तरफ आता हूँ। क्वेश्चन आज बहुत हैं, बहुत क्वेश्चन हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी एग्जाम स्ट्रेस और एग्जाइटी में क्या डिफरेंस है। भाई ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। नूर इलियास कहते हैं जी, सर अदर देन एग्जाइटी बिफोर एग्जाम्स आई वुड आस्क के मेरे साथ ये इशू है कि ज़्यादा कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना हुए तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। काफ़ी दिनों तक चीज़ वो मेरे माइंड में रहती है। नींद का इशू आ जाता है, रोना आता है, कुछ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं नालायक हूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ये काफी ज्यादा होता है। तो इस चीज के साथ कैसे कोप अप किया जाए, इसी से मिलता जुलता सवाल है, काफी ज्यादा मिलता जुलता सवाल है कि डिससेटिस्फेक्शन कि हमने काम तो किया था, हार्डवर्क बहुत किया था, बट रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया। तो ये दोनों मेरे ख्याल में किसी हद तक इंटरलिंक है। तो सोफिया, आप प्लीज इनका रिप्लाई कीजिए कि ये रोमा इस्माइल साहिबा का था कि इस देर और जी रहमत बीबी कि मैम व्हाट अबाउट डिससेटिस्फेक्शन कि हमने हार्डवर्क तो किया बट हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। और नूर इलियास का था कि जी मुझे ये डर रहता है कि मैं नालायक हूँ, मुझे नंबर अच्छे नहीं आते, इन चीज़ों का। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक बात जानने की ज़रूरत है। सम टाइम होता है कि हम अपने बारे में भी ना गलत एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मुझे सम टाइम ये लग रहा होता है कि मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने बहुत सम टाइम हमने मेहनत ही गलत पॉइंट्स पे की होती है। रिक्वायरमेंट जो होती है, बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट होती है कि हमने ख़ास क्राइटेरिया उसको हमने उस लिहाज से तैयारी करनी है। लेकिन होता क्या है कि हम किसी ऐसे पॉइंट की तैयारी करते हैं जो कि अननेसेसरी होता है। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको लगता है कि आपने तैयारी अच्छी की है, तो प्लीज़ अपनी जो सेल्फ असेसमेंट अपनी जो खुद करते हैं, इसके अलावा अपनी असेसमेंट ना किसी और से भी करवाएँ, जो कि अपने काम में वैलिड हो। जिसने पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि आपको लगता है कि जी आपके सीनियर जो हैं, जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनसे उनको कहेंगे एक दफ़ा आप रिव्यू करें कि जो मेरी तैयारी है, ये जो मैंने प्रिपरेशन की है एग्ज़ाम की, क्या वो सही है? वो ऑनेस्ट आंसर आपको देंगे। सम टाइम हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एज़ सच वो तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है? दूसरी चीज़, एक बात जो मैं हमेशा पेरेंट्स को, बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और एक आप ख़ास फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आप तैयारी होने के बावजूद, प्रिपरेशन होने के बावजूद आपके मार्क्स नहीं आए, आप उस फ़ील्ड में नहीं गए, तो इट मीन्स आपको अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी रिज़्क के दरवाज़े कहीं और रखे हुए हैं। तो आप इस पे इतना स्ट्रेस आउट ना हों। होता क्या है कि हमें ये लगता है कि क्योंकि एक जो है ना हमारी तैयारी बहुत है, हमेशा हम अपने ज़हन में जो प्लान बनाते हैं, हमें लगता है कि हमारे हम कब डिसअपॉइंट होते हैं कि जब हमें लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस उस एक्सपेक्टेशन पे चीज़ें पूरी नहीं उतरी, एनवायरनमेंट वैसा नहीं हुआ, हालात वैसे नहीं हुए, रिज़ल्ट वैसे नहीं आए। तो ये जो वजूहात होती हैं, इसको थोड़ा-सा ना ऑनेस्टली ऑनेस्ट फैक्टर्स को देखते हुए, रियलिटी को देखते हुए आप अपना चेक एंड बैलेंस लगाएं। सम टाइम बच्चे ने तैयारी इतनी नहीं की होती, उनको लगता है कि जी हमने एग्जाम्स में या जो प्री स्कूल्स में एग्जाम में रिजल्ट अच्छा लिया हुआ है, तो हमारा उस टाइम भी हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सम टाइम हम तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाते जो जरूरत थी। ठीक है, हमें पेपर जो है ना अटेम्प्ट करने का तरीका उस तरह, हमारी तैयारी होती है, पेपर अटेम्प्ट करना सही तरीके से नहीं आता। कौन सा जो पॉइंट्स हमने प्रोमिनेंट करने हमें वो लिखने नहीं आते। सम टाइम हमारी जो पेपर परफॉर्मेंस होती है वो इतनी राइटिंग स्टाइल कुछ ऐसे होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं करते एग्जामिनर को, और वो इसको नंबर नहीं दे पाता। मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको ये लगे कि जी मेरी तैयारी थी और मेरे नंबर नहीं है। अपने आप को मार्जिन दें। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन की हुई है कि आपके 95% आएंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन रखें आपके 85 से 90% रिजल्ट आएगा। तो जब वो चीजें होती हैं तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन रहती है। आप एक्सपेक्टेशन ही समटाइम इतनी ज्यादा लगा लेते हैं, जब नहीं आते तब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें, अपनी अपनी तैयारी को रियलिटी चेक के साथ तैयारी रखें प्लीज। अपनी तैयारी और अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करें। दूसरों का कंपैरिजन हमेशा हमें डिजास्टर क्रिएट करता है।
थैंक यू सो मच सोफिया। अजान बिन सुहेल साहब ने क्वेश्चन किया, इंटरेस्टिंग है, मैं ही जवाब दूंगा उनको। प्लीज इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द पेरेंट्स मिस्टेक टेल अस हाउ वी द स्टूडेंट्स कैन forge our pathway towards success. Our parents have taken so much care of us, spent their whole money on us. They can have the right to wish that their children should reach excellence. Please, I am waiting. Tell us more about the student's perspective. Give us tips for reaching excellence. I would be grateful. अजान देखिए, हम पेरेंट्स की मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं कर रहे। अगर आपको थोड़ी समझ का इशू है तो मेरे ख्याल में होगा। हम पेरेंट्स की मिस्टेक नहीं कर रहे, हम उन ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं। जब आपको माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड कि आपको ये चीज पता चल गई कि आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, आपने क्या करना है? तो आपने फोकस करना है। बट यू हैव टू डू कि आपने फोकस करना है और उस वक्त का सही इस्तेमाल करना है जो आपके पास मौजूद है। पेरेंट्स ने अपना काम कर लिया और हर पेरेंट्स करते हैं। हम उन अनरियलिस्टिक ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं जो थोपी जाती हैं बच्चों पे। आपने शायद सुना हो, आपने इंडिविजुअल की बात नहीं करा, आपको इंडिविजुअल सेशन चाहिए हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उन अनरियलिस्टिक ख्वाहिशात जो बच्चे कर नहीं सकते। एक बच्चे का ट्रेंड है मिसाल के तौर पे फाइनेंस का, और उसको कहा जाए कि तुमने मेडिकल पढ़ना है। एक बच्चे का ट्रेंड है मेडिकल का, बट उसको कहा जाए कि नहीं तुमने वकील बनना है। हम उसकी बात कर रहे थे। और जब पेरेंट्स ने अपना काम कर लिया, इट मींस यू हैव ऑल द मींस, तो आपने उसको राइट यूटिलाइज करना है। क्या करना है? राइट यूटिलाइज करना है, फोकस करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट, अपने आप को डेजर्ट मत करें, आप फोकस करें और उन चीज़ों के ऊपर काम करें कि जो आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टूडेंट टिप्स वाली चाहिए, आप एड्स के पेज में हमसे रब्ता करें, हम आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर देंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अलीना आपसे। उसामा साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनका कहना है कि जी मैं शुरू में पेपर्स की परवाह नहीं करता था, कोई फेयर नहीं था, तो 3.12 उनका जीपीए आ जाता था। बाद में उन्हें ख्याल आया कि शौक हुआ कि मैंने बाहर जाके पढ़ना है, जिसके लिए मिनिमम उनको 3.4 जीपीए चाहिए। तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की और ज़्यादा टेंशन लेना शुरू की। अब उनका जीपीए तो 3.6 आ गया है, बट वो शदीद एंग्जाइटी और टेंशन का शिकार है। वो चाहते हैं उसके लिए क्या करें? अलीना आपका माइक म्यूट है जी। अच्छा, हाँ सर। जी जी, मैं बिल्कुल, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? शायद डिस्टॉर्शन की वजह से जी मैं कुछ पार्ट्स मैं की। उसामा साहब, उसामा है, माय नेम इज उसामा। यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग में मैंने पेपर्स की परवाह नहीं की और कोई फेयर नहीं था। मेरा जीपीए 3.12 आता रहा। उसके बाद मुझे बाहर जाने का शौक हुआ और मुझे हुआ कि फॉरेन के स्कॉलरशिप के लिए मुझे कम से कम 3.4 जीपीए चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से काम स्टार्ट किया, ज्यादा टेंशन ली। अब मेरा जीपीए तो 3.6 हो गया है, मगर मैं बहुत शदीद एंग्जाइटी और टेंशन का शिकार हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा देखिए, ये टॉपिक बिल्कुल हमारे टॉपिक से हट गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जाम एंजाइटी की। ये एक जनरल लाइफ एंजाइटी है जिसका आपने सवाल किया है। लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं। नंबर वन, कि आप क्या आप खुद पे चेक करें। हमारा, जिसमें मिस सोफिया ने भी बात की, कि हम फन जो अपना फैक्ट चेक है वो नहीं करते, रियलिटी चेक नहीं करते, हम अपने आप को चेक नहीं करते कि हम उस चीज के काबिल हैं भी नहीं जो हम अपने जेहन में बिठा रहे हैं कि हाँ हमने ये अचीव करना है। क्या हमारी अपनी चीजें जो हैं वो उस काबिल हैं? क्या हमने अपने आप को उस काबिल बनाया है या नहीं बनाया? नंबर टू, आप इस चीज को देखिए कि क्या आपने जो टारगेट सेट कर लिए हैं, आपका टारगेट कितने अरसे का था और अब आप अचीवमेंट के कौन से लेवल पर। नंबर तीन, आप इस चीज को फोकस कीजिए कि आपने जो टारगेट बना लिया था आप सिर्फ उसी के ऊपर रहें। अगर तो आपका टारगेट ये था कि आपने बाहर जाना है और उसके लिए आपको 3.4 जीपीए चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आपने वो अचीव कर लिया। आपको अब एंजाइटी उस चीज की नहीं है कि आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब आपने अपनी दोनों एंजाइटी को मिक्सअप कर दिया। अब आपको एंजाइटी ये है कि आपने बाहर जाना है, और वो जाना किस तरह है। जहां तक मैं इसको समझ पा रही हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ वो 3.4 वाला क्राइटेरिया था, वो तो अचीव हो गया, उसमें तो एंजाइटी की जरूरत रही ही नहीं। तो वो एंजाइटी नहीं है। अब आपकी जो एंजाइटी है वो ये होगी, जो आपने अपना नेक्स्ट कोई गोल प्लान किया होगा, उसको ओवरकम करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो सबसे पहले चीज ये है कि अपने गोल्स के छोटे छोटे से स्टेप्स बना लीजिए, और फिर उस छोटे छोटे जो स्टेप्स आप बना रहे हैं उसको आप अचीव करने की तरफ जाइए। अगर आप एक छोटा स्टेप अचीव कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। जब आप डायरेक्ट एक बड़ा टारगेट बनाएंगे और आपको उसमें फेलियर होगा, तो आपकी एंजाइटी मजीद बढ़ेगी। तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि आप अपना छोटा टारगेट सिलेक्ट कीजिए और उस छोटे टारगेट के ऊपर मुकम्मल फोकस होकर काम कीजिए। दो बातें की मैंने। नंबर एक, छोटा टारगेट सेट कीजिए। नंबर टू, कि सिर्फ उस टास्क के ऊपर फोकस होकर
आप वो जो काम है उसको कीजिए। तो आई होप कि आप जो है वो इस एंजाइटी को ओवरकम करने के में हेल्प आउट होंगे। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह स्लीप पर आपको काम करना चाहिए, आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स के ऊपर काम करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप जो है वो कितना टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं, अपना मी टाइम आप कितना निकाल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपको खुद से वर्किंग करने की जरूरत होगी। जनरली तो मैं आपको यही बता सकती हूँ, बाकी मजीद डिटेल में आपको इसको डिस्कस करना है, जिस तरह सर ने भी डिस्कस किया है कि आप पैट्स के प्लेटफॉर्म पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप सो कोई इंडिविजुअल सेशन आपको इसमें ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सो मच। सोफिया, आपकी तरफ आता हूँ। हसनैन साहब का क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज टू बूस्ट अप इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एंजाइटीज? कि आपकी कौन सी ऐसी इनर, किस तरह आप अपनी इनर मोटिवेशंस को बूस्ट करें, या किस किस्म की मोटिवेशन लेकर आए अपने अंदर कि इस तरह की एंजाइटीज को कूप अप करें? और साथ ही मेरे ख्याल में अब हमारे आखिरी 15 मिनट रह गए, तो इसके बाद हम जाएंगे कि क्या कौन सी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स हैं जिनको जो यूज करके हम लोग काम करें। सोफिया मेरे ख्याल में ऑफलाइन हो गई हैं, तो यस, अली, डिस्कनेक्टेड हुई है। हाँ, आप ही इस क्वेश्चन का अगर डॉक्टर रिप्लाई करें। शाजिया हमारे साथ हैं, डॉक्टर डॉक्टर शाजिया का शाजिया ने माइक भी काम हमें नहीं कर रहा। जाकर। डॉक्टर शाजिया का माइक काम नहीं कर। डॉक्टर साहब अभी अस्सलाम आप। वालेकुम जी, कैन यू हेयर मी राना खुरम साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इशू था जो माइक पे नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, इसलिए कि आप उसमें नहीं जी थी। जी तो इफ जी अगर जी। आप इसमें तो कोई भी आप इस टॉपिक पे कोई वैल्यू एडिशन, प्लीज क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे। अभी जो आपका क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू फर्स्ट आंसर दैट क्वेश्चन। आपने अभी जो स्टूडेंट का सवाल था, दैट वाज अबाउट द प्रॉब्लम। अभी आप प्लीज थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को रिपीट करें, आई कैन आंसर द क्वेश्चन। What are the ways to boost up inner motivation to avoid such kind of anxieties? देखिए, इनर बूस्ट जो है दैट इज ऑलवेज अबाउट यू, हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू थिंक अबाउट योर लाइफ, हाउ यू थिंक अबाउट योर गोल्स। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और क्या चाहते हैं लाइफ से। दैट इज समथिंग विच विल create that motivation which you require. This is not something कि कोई IV है जो कोई लगा देगा and you'll be motivated and you'll be doing things, या कोई psychologist आपको कोई 4 tips दे देगा and you'll be reaching to a point where you'll be completely motivated. No, this is something which you have to decide that you want to do it. आप करना चाहते हैं, आप बेहतर होना चाहते हैं, आप जिंदगी के गोल सेट करें और आप मुतमईन हो जाएं कि जो आप हासिल करना चाहते हैं, that is something ultimately the purpose of life you have decided for yourself. तो अगर तो आपने वो कर लिया, तो फिर आप वो सारे टास्क करना शुरू हो जाएंगे जो रिक्वायर्ड हैं, वो सारे टास्क जो आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे। आप 1 by 1 मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब आप स्मॉलेस्ट अचीवमेंट से हाईएस्ट अचीवमेंट की तरफ जाएंगे, तो वो जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो भी आना शुरू हो जाएगी। और जब सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी, तो डेफिनेटली मोटिवेशन आपकी ऑन एवरी स्टेप विल बी इंक्रीजिंग एंड यूल बी रीचिंग टू दैट लेवल के जहाँ पे आपकी एंजाइटी जो है वो कम होके आपकी सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और डेफिनेटली उसके लिए आपका एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपका पीयर ग्रुप, एवरीबडी मैटर्स। कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, वो आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं, और लाइफ सर्कमस्टांसेस कितने पॉजिटिव हैं। बाज़ औक़ात यू गिव योर मैक्सिमम बट यू गेट द मैक्सिमम नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो आपकी मोटिवेशन सारी ड्रॉप हो जाती है। इवन बिसाइड्स ऑल योर एफर्ट्स, बिसाइड्स ऑल योर हार्ड वर्क, आप एकदम से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं आफ्टर लर्निंग समथिंग फ्रॉम समबडी अराउंड योरसेल्फ इन द एनवायरनमेंट। Or sometimes doing everything but not having enough resources will be definitely leaving you with lack of motivation. तो motivation के लिए सिर्फ you are not somebody, environment is not the only condition, and your ultimate goals. If you are confused about your own life, you don't know what you want to achieve, definitely you'll be reaching to that level जहाँ पे motivation जो है वो minimum होना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट effective strategies to stay calm and focused during an exam, especially when facing unexpected or difficult questions? तो खैर, देखिए, expected और difficult question
is a very subjective term, but point वही आ जाता है, जैसे भी आपने इस चीज को कहा कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, अब चीजें हैं, प्रिपरेशन हुई भी है, मगर वो प्रेशर जो है, जिसके अभी हम पहले बात कर रहे थे, जो फियर ऑफ फेलियर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि घबराहट आ जाती है कि हम नहीं कर सके तो क्या होगा, उसका हम एंड रिजल्ट पहले सोचने लगते हैं। तो प्रोशा जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को, कि उस चीज को कैसे कूप अप करेंगे जो पहले ही डर आ जाता है कि हम ना कर सके तो क्या होगा, और उस चक्कर में हम अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट कर लेते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जो चीज आता है वो भी, उसको भी हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते। डेफिनेटली जब आपकी एंजाइटी हाई होती है, इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा एग्जाम एंजाइटी की रीजंस हैं वो आपकी ओवर जनरलाइजेशंस हैं। यू जनरलाइज एवरीथिंग, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, माय फ्रेंड्स आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग ग्रेट, माय कजन्स आर डूइंग ग्रेट। तो जितने भी लोग एग्जाम एंजाइटी के साथ होते हैं, पर्सनल कैपेसिटी, व्हाट पर्सनल कैपेसिटी डू यू हैव? यू शुड बी एबल टू नो कि कहाँ पे है, कितनी है, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। एंड सिंस योर चाइल्डहुड यू नो एग्जैक्टली हाउ यू हैव बीन डूइंग। इतने सालों से आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके या कॉलेज लेवल पे भी इफ़ यू आर फीलिंग एग्जाम एंजाइटी, तो एक तो आप सबसे पहले अपनी कैपेसिटी, अब अगर एक पर्सन जो है वो अगर 2 फीट जंप कर सकता है और वो अपने आप को टारगेट 12 फीट देगा, तो डेफिनेटली आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। तो उसमें जाके आपकी अचीवमेंट डेफिनेटली लो होगी जब आप ओवर एम्बिशियस होंगे। दूसरा, आप ओवर जनरलाइज करेंगे, आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने अचीव भी किया है, उसको यू डोंट कंसिडर। यू ऑलवेज से कि नहीं, मैंने तो जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, या एक फेलियर जो है उसको आपने सारी चीज़ों के ऊपर इतना जनरलाइज कर दिया दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर परफॉर्मेंस। और तीसरी चीज़, अगेन आई वाज हेयरिंग थ्रू द फेसबुक लाइव, आपका ये शो चल रहा था व्हेन आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन, कि डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन जो हैं फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रॉम योर ओन सेल्फ, कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो वो जो वो ओवर एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम योर ओन सेल्फ, इवन इफ यू आर नॉट केपेबल और इवन इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू समथिंग, आप वो करना ही नहीं चाह रहे, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे हैं, क्योंकि टीचर्स कहते हैं। आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि जहाँ पे एक स्टूडेंट को who was getting 98 point marks, but she was coming for the anxiety issues, और उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये था, टीचर वॉज वेरी अनहैप्पी कि मेरा स्टूडेंट 99.5% या 99.9% नंबर लेता, तो आपने कैसे 98 ले लिए। तो समटाइम्स पीपल अराउंड यू पुश यू टू द लेवल कि जहाँ पे वो कहते हैं, शी वाज सो अनहैप्पी विद हरसेल्फ कि मैं क्यों नहीं 99 पॉइंट क्यों नहीं ले पा रही हूँ, 98 पे क्यों खड़ी हूँ, एंड आई एम अनहैप्पी कि मेरे उस्ताद जो हैं वो मुझसे नाराज हो गए। तो समटाइम्स वो जो आपकी एक कैपेसिटी है, आपकी मोटिवेशन है, आपके इर्द गिर्द के लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं जिंदगी के साथ। और अगर एंजाइटी हो रही है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं फेल कर जाऊंगा, तो आपके पास अगले ऑप्शंस कौन से हैं? व्हाई यू ऑलवेज हैव जस्ट प्लान ए? Why do you don't go for plan B and plan C for yourself? Why you say this is black and white? There are always gray areas in life. जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती है, जिंदगी हमेशा राइट और लेफ्ट नहीं होती है, उसमें कुछ टर्न्स भी होते हैं, कुछ मूव्स भी होती हैं। तो यू हैव टू थिंक कि मुझे जिंदगी में अगर मेरा प्लान ए सक्सेसफुल नहीं है, अगर मैंने इस पेपर को क्लियर नहीं किया, इस पेपर में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो मेरे पास प्लान बी और सी क्या है, इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, और जो आपको आता है आप मैक्सिमम उस पर परफॉर्म करें, क्योंकि डेफिनेटली आप जब पेपर को देखते हैं तो आपको पहली फीलिंग जो डेवलप होती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो जो नेगेटिव सेल्फ सजेशंस हैं वो हम अपने आप को इतने ज़्यादा देते हैं कि उससे एंजाइटी इंक्रीज करने से आपके जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, आपका ब्रेन जिस तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है, उसमें इतना वो ऑटो पे चला जाता है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। तो आप जब तक अपने आप को आप डीप ब्रीथ करें ड्यूरिंग पेपर, इफ़ यू थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डीप ब्रीथ करें, अपने आप को ये बताएं कि इसमें से मुझे क्या आता है, मैं कितना कर सकता हूँ। और परसेंटेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो मे आई रीच टू अ 60%, मे आई रीच टू अ 50%, मैं पासिंग मार्क्स ले सकता हूँ, मैं 60 पे जा सकता हूँ, मैं 70 पे जा सकता हूँ. थिंक अबाउट दीज लिटिल थिंग्स ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड यूल फील बेटर. यूल फील बेटर फॉर योर सेल्फ कि ओके फाइन दिस. और अगर नहीं भी हो सकता तो कितना कर पाऊंगा और इसके बाद क्या कर सकूंगा. ये नहीं होगा तो और क्या हो सकता है. And you can't be best in everything. Sometimes you're good in one thing, average in one thing, or above average in one paper. You might be excellent in another paper. And you can compensate your marks, your grades in one paper जिसमें आप excellent हैं. दूसरे में आप average भी perform करें तो you should give yourself that space that this is something which is not my piece of cake. शायद ये मैं उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना मेरा कोई और क्लास फेलो कर सकता है, तो I should be knowing my strengths. You have to see uniquely what you can do better, how you can do better than other people around yourself. And you should not be comparing कि अगर उसने इस पेपर में इतना किया तो मैंने क्यों नहीं किया. You see कि what you can do best और किस पेपर में आप बेहतरीन कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट कर लें ताकि आप उसमें मैक्सिमम पे पहुंच जाएं. और इसमें आप एवरेज पे भी परफॉर्म कर लेंगे तो यू नो कि ओवरऑल आपका CGPA या आपके जो परसेंटेजेस हैं दैट कैन रीच टू अ लेवल के जहाँ पे आप एक अच्छा अचीवमेंट लेवल जो है वहां तक पहुंच सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. रहमत बीबी साहिबा कहती हैं, सर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब यूनिवर्सिटीज़ आपको टेंशन देती हैं, कभी 2-3 महीने बाद एग्जाम है, कभी 6-7 महीने बाद. रहमत बीबी देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अडेप्टेबिलिटी. तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए. यूनिवर्सिटी अगर कोई प्लान करती है कभी 3 महीने बाद या कभी 6 महीने बाद, तो कभी इत्तेफाक हो जाता है, चीज़ें होती हैं. हम कोविड के दौर से गुजरे हैं जहाँ पे बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अडेप्टेबिलिटी लाएं अपने अंदर. आप उन चीज़ों पे परेशान मत हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूनिवर्सिटी अगर कुछ सोच के कर रही है तो एक पूरी फैकल्टी होती है, पूरी मैनेजमेंट होती है. तो अगर आप उनके कामों में भी परेशान होंगे, सोचेंगे, तो मुश्किल होगा. तो जरूरी ये है कि जैसे भी बात हो रही थी कि आप कंटिन्यूस एक प्रोसेस को करें, आप सीखें चीजों को. कॉर्पोरेट लाइफ में जब आप जाएंगे, आप जॉब करती हैं नहीं करती, जो आपके ऊपर है, तो हर लेवल पे आपको वो जो नॉलेज आपकी है ना, वो रोजाना इस्तेमाल करनी है और रोजाना कुछ गेन करना है. सिमिलरली स्टूडेंट लाइफ में अगर कंटिन्यूस आप चीजों को करते रहें, अपने टाइम को कितना डिवाइड करें, तो आप उन चीजों पे परेशान होना छोड़ दें जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है. अगर आप ये सोचेंगे यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है, तो वो टिपिकल हमारे यहाँ होता था. कुछ लोग बैठे हैं सिर्फ ये बहस कर रहे होते थे, फलाने ने फलाना काम क्यों किया. स्ट्रेस आप लोग ले रहे हैं जिसमें आपका कोई हल कोई काम ही नहीं है. ना आप उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो कभी कभी और चीजें आ जाती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें, मेंटली ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें. तो ऑटोमेटिकली आप इस किस्म की चीजों पे तवज्जो नहीं देंगी. 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, भाई अनाउंस तो होते हैं ना. ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन बाद अनाउंस कीजिए, आज आपको पता चला कि जो 6 महीने बाद एग्जाम होना था वो कल है. ऐसा नहीं हो सकता. तो इन चीजों में परेशान होना छोड़ दें. अलीना, मैं आपकी तरफ आता हूँ. खैर वो कॉर्पोरेट के हवाले से है, स्ट्रेटजीज मांग रहे हैं. नादिया इकबाल साहबा ने हमें मुख्तलिफ बातें की हैं. हाँ जी, जहांगीर फैज साहब कहते हैं जी, हाउ डज एग्जाम एंग्जाइटी अफेक्ट कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और मेमोरी रिकॉल. उनका ख्याल है कि एग्जाम एंग्जाइटी आपको चीज़ें भुला देती है. ठीक है, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी उस परफॉर्मेंस को, क्या आपने किस वक्त क्या चीज़ डिलीवर करना है, इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे. सर जिस तरह मैंने जब हमने इस सेशन का स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि 3 तरह की एंजाइटी की टाइप हैं. अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी टाइप के अंदर फॉल कर रहे हैं. देखिए, जिसको अगर हम बात करें कि आप चीज़ों को एंजाइटी आपको इस हद तक है, मतलब इतनी नॉर्मल एंजाइटी है कि आपकी चीज़ें आपको याद हो रही हैं और आप उसको अपने जहन में रख पा रहे हैं. जब आप सिर्फ अपने एग्जाम्स के कंटेंट के साथ मुख्तलिफ फैक्टर्स को भी अपने माइंड में रखना शुरू कर देते हैं कि ये होगा नहीं होगा, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, वैसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपकी जो कंटेंट है उसके ऊपर भी हावी हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं आपके जहन में सिर्फ वो नेगेटिव चीजें जो हैं वो ज्यादा हाईलाइट होती हैं और बाकी चीजें जो हैं वो कहीं पीछे जाना शुरू कर देती हैं. तो कोशिश ये होनी चाहिए, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि उन नेगेटिव चीजों को ओवरकम कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है. तो आप उनको कंट्रोल करें ताकि आप अपने जो रिकॉलिंग का प्रोसेस है वो तभी होगा जब आपके जहन में सिर्फ एक चीज रहेगी और वो है वो कंटेंट जिस पे आपने फोकस करना है. जब आपने अपना कॉन्फिडेंस इस चीज में बहाल किया हुआ है कि जी
मैंने जो चीज याद की है कि हाँ वो मुझे याद है। इस तरह हमें सोफिया ने पहले भी डिस्कस किया कि आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत होती है, अपनी असेसमेंट करने की जरूरत होती है कि आप फॉल कहाँ कर रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि आप यहाँ पर फॉल कर रहे हैं, आप इस लेवल पर हैं, तो और दूसरी साइड पे आपने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव फीलिंग्स को, इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, डीप ब्रीदिंग की, मेडिटेशन की, आपने आपने अपनी चीजों को राइट अप में लेके आए कि मुझे क्या क्या मसाइल आ रहे हैं और मैंने इन इन मसाइल को ओवरकम कर लिया है, अब सिर्फ मुझे अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। तो आपको फिर इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता, आपको मेमोरी लैप्स का या आपको फॉरगेटिंग का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता। थैंक यू सो मच। बस 2 मिनट रह गए। रुखसार जी, आपको हम इनिशियली नहीं सुन सके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आज का टॉपिक था हमारा मैनेजिंग एग्जाम एंजाइटी एंड एनहांसिंग परफॉर्मेंस। तो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स, हमारे पास 2 मिनट है, तो क्लोजिंग रिमार्क्स दिए हो ताकि मैं चाहूंगा कि ऑडियंस आपकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन सकें। तो इसको क्लोज भी करें सेशन को, और अपनी रिमार्क्स भी दें प्लीज। जी, my remarks regarding exam anxiety are always like कि आपकी अपनी जो कि मेरा ख्याल इनिशियली व्हेन आई वाज आंसरिंग, तो उस पे भी मैंने यही बात की कि आपकी कैपेसिटी, आपकी गोल्स और आपकी इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज क्या हैं, वेयर डू यू वांट टू रीच, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट कैपेसिटी यू हैव फॉर योरसेल्फ, कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एग्ज़ाम एंजाइटी उसी वक्त ख़त्म होती है जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इंसाइट डेवलप हो जाती है, वी नो वेयर वी आर, वी नो व्हाट वी वांट एंड वी नो दैट व्हाट रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेशंस वी हैव इन द एनवायरनमेंट। तो अगर 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपको उसकी नो हाउ है, आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको पता है आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपको पता है आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, तो आई होप कि वो जो एक जनरलाइजेशन या एक नेगेटिविटी या एक नेगेटिव सेल्फ एवेलुएशंस और एक जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसी वक्त डेवलप होती हैं कि जब आपके अंदर इंसाइट नहीं होती और आप कंफ्यूज्ड होते हैं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से। तो जैसे आपको अपनी इंसाइट आपकी डेवलप हो गई और आप उस लेवल पे पहुंच गए जहां आप पहुंचना चाहते हैं और जो आप जानना चाहते हैं और जहां तक आपने अपनी लाइफ को, अपनी विजन डेवलप की हुई है कि मैं यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, तो फिर एग्जाम एंजाइटी नहीं होती। और जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जाहिर है अगर पेरेंट्स और इन्वायरमेंट और बाकी प्रेशर्स की वजह से और स्ट्रेसर्स की वजह से यू विल बी डिसाइडिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, तो डेफिनेटली वो फिर नेगेटिविटी जो है वो रहेगी। और जो प्रीवियस लर्निंग है फ्रॉम एनवायरनमेंट, पेरेंट्स और टीचर्स जिन्होंने आपको नेगेटिवली एवेलुएट किया या नेगेटिवली आपको रीइंफोर्स किया, वो चीज़ें डेफिनेटली आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और बाज़ औक़ात आप बहुत कुछ करने की कैपेसिटी होने के बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जस्ट बिकॉज दैट पीपल टोल्ड यू दैट यू कांट डू इट। सो जस्ट रिलाई ऑन योर ओन सेल्फ, टेस्ट योर ओन कैपेसिटीज़ rather than only evaluating your own self based on the previous learnings. So I hope that people can reach to their maximum, and everybody wants to get the maximum out of this life. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अलीना, एक क्वेश्चन था जो मुझे मेरे एक्चुअली पर्सनल इनबॉक्स में कर दिया था, तो मैं मिस कर गया, तो वो उस क्वेश्चन का भी रिप्लाई कीजिएगा और साथ क्लोजिंग रिमार्क्स भी दे दीजिएगा। हाउ कैन आई, अली सुल्तान साहब कहते हैं, हाउ कैन आई बैलेंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड? मल्टीपल सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें विदाउट प्रेशर में आए हुए, ओवरवेल्म हुए हुए? इसको भी प्लीज रिप्लाई कर दें और साथ ही जो है ना क्लोजिंग करते हैं, ताकि हम आज का सेशन क्लोज करें। अच्छा सर, इस पे मेरा ख्याल है अपने बल पे का पहला एक सेशन हुआ भी है पिछले महीने में, टाइम मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हमने देखा कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो सब्जेक्ट्स के हवाले से भी आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत है कि आपने किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और किस सब्जेक्ट की टाइम डिवीजन किस तरह से करनी है। आपको वो सीखना पड़ेगा और वो करनी पड़ेगी, फिर ही आप तमाम सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल सकेंगे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अपना टाइम मैनेज करते हैं ना कि फेसबुक मैंने इतनी देर इस्तेमाल करनी है, इंस्टाग्राम इतनी देर इस्तेमाल करना है, स्नैपचैट इतनी देर इस्तेमाल करना है। इसी तरह अपने बाकी टाइम को भी जो है वो डिवाइड कर लें कि मैंने कौन सा टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और कितना देना है। जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा कमी महसूस हो रही है उसको ज्यादा टाइम दें, और जिसमें आपको लग रहा है आपकी ग्रिप है आप उसको थोड़ा कम टाइम दें। हम क्या करते हैं,
कि हमने एक मखसूस टाइम रखा होता है और उसी टाइम में तमाम सब्जेक्ट को लेके चल रहे होते हैं। तो हमारे लिए थिंकिंग में भी और चीजों को अंडरस्टैंडिंग में भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो चीजें प्रोसेस हो रही हैं, हमारी थॉट प्रोसेस हो रही हैं, वो टाइम टेकिंग होती हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। बाकी रही क्लोजिंग की बात, तो सर एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मुझे आ रहा था, डॉक्टर शादिया जब बात कर रही थी, मैं वो उसी के साथ में अपनी बात को जो है वो क्लोज करना चाहूंगी कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। कि हमें पता है नेगेटिव चीजें और बहुत सी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम कितना कर सकते हैं इस चीज की इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ऑडियंस। उम्मीद है आज आपको हमारे इस वेबिनार, इस टॉपिक और इस डिस्कशन से फायदा हुआ होगा। देखिए, याद रखिएगा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बड़ी नेचुरल चीज है। उसमें कोई, किसी को अगर एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो कोई गलत नहीं हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है। ये एक बड़ी नेचुरल फीलिंग है, ठीक है। ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है। क्यों? हम इमोशन, इंसान, ह्यूमंस और इमोशंस कनेक्टेड है, तो इमोशंस आपको, आप पे स्ट्रेस ले आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे कैटर करें, कैसे मैनेज करें। जैसे रिश्ते निभाने होते हैं ना, उस तरह ही जो काम होते हैं वो भी निभाने होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तसल्ली के साथ प्लान आउट करें। सबसे जो तकलीफ बढ़ती है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है, वो जब आता है जब हम टाइम जाया करते हैं। जब हम टाइम जाया करते हैं तो जो ड्यू टाइम होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता जाता है। मिसाल के तौर पे, जब चीजें, जो कोर्स बनता है ना, उसकी बड़ी एक साइंस है, उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। तो वो सब चीजें प्रोसेस होता है, उसमें देखा जाता है स्टूडेंट्स हैं 3 महीने में पढ़ेंगे, प्रिपेयर होंगे, एग्जाम की छुट्टियां आएंगी। होता क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो हम हंसी मजाक में या डिफरेंट चीजों में जाया कर देते हैं। बैलेंस लाइफ गुजारें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा टाइम पढ़ाई पे लगाएं। आप बैलेंस लाइफ गुजारें, पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, सोशलाइजिंग के लिए, सबके लिए बैलेंस टाइम गुजारें, बट टाइम जाया मत करें। जब हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वो एकदम हमारे ऊपर पड़ती हैं, फिर स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, और हम ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हम नहीं चाहते, या ऐसे रिजल्ट आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इसका ख्याल करें। और उम्मीद है आप, इंशाल्लाह फिर हम एक नए वेबिनार के साथ अगले महीने हाजिर होंगे। स्पीकर्स का, सोफिया साहिबा, अलीना और डॉक्टर शाजिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आज की जो गुफ्तगू थी बहुत अच्छी थी, और बहुत, मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने बहुत उससे फ़ायदा उठाया होगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा से रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।